Hello students, welcome to the Krish Cambridge School online classes. This is the class for 5th. Our subject is EVS and today we will be discussing your chapter 1 which is understanding relations. बेटा इस चैप्टर में हम समझेंगे कि हमारे रिलेशंस जो हमारे रिश्ते होते हैं उनके बारे में आज हम इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. So before starting the class, let me ask that all of you must be fine and safe at your home. So please take out your books which is Environmental Studies class 5th and take page number 3 and keep it in front of you and keep a pencil in your hand. So the pictures here are only for the reference purpose. If you are not able to understand, please keep your book. आपको हमेशा अपनी book अपने सामने ही रखनी है. So shall we begin? Understanding relations is our first chapter. Let us begin the chapter now. Suman and Wahida studied together in school. One day Suman was very sad. Wahida asked her, "Why are you so sad today?" Now Suman and Wahida जो है वो two friends है. वो क्या है? Two friends है. They study in a same school. They study in the same school. एक ही स्कूल में पढ़ते हैं. One day Suman was very sad. Now what happened? One day Suman was very sad. Suman जो है बहुत ज़्यादा उदास थी. Wahida asked her, "Why are you so sad today?" Now Wahida asked her कि इतनी उदास क्यों हो? सुमन said, "My father is not feeling well." Now what सुमन said? सुमन ने कहा मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं. Wahida said, "Don't worry, in the interval we will talk in detail about this matter." Now what she's saying that in the interval we will talk about this matter in detail. Okay, what we will do? We will talk about this matter in Okay, so what they are talking that my father is not feeling well. सुमन ने ये कहा. Wahida said, "Don't worry. In the interval we will talk in detail about this matter," because they were in the same class, in the same school and they were studying. So what Wahida said कि हम interval में इस चीज़ के बारे में अच्छे से बात करेंगे. अभी हम पढ़ाई पर ध्यान देते हैं. Your father will get well soon. और तुम्हारे father जो हैं वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे. Now you can see that Suman and Wahida are not wasting their time. They are investing their time in the studies. They are not getting disturbed by each other. They have decided that they will talk about on this matter in the interval. Now during the recess time, Wahida and Suman, this is a conversation between the two. Wahida, yes Suman, now tell me what happened to your father. Now Wahida is asking कि तुम्हारे पापा को क्या हुआ, मुझे बताओ. Suman, my father is suffering from fever since yesterday. Now what she said that her father is suffering from fever since yesterday. कल रात से उनके father को fever है, बुखार है. Wahida, have you taken him to a doctor? क्या तुम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई? Suman, yes, the doctor has given him medicines. My grandmother and aunt are taking care of him. हाँ, हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए. डॉक्टर ने हमें दवाई दी है और मेरी जो ग्रैंड मदर है और आंट उनका ध्यान रख रही हैं. Now Wahida, then why are you so worried? Everyone is there in your family to take care of him. Now Wahida is saying why you are getting so worried? There is everyone in your family who is taking care of him because there are so many members in your family. You are living in a joint family. Suman, yes, all of my family members live together. My grandfather, my grandmother, uncle, aunts and their children, we all live together. Now Suman क्या बता रही है कि हम जो हैं एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं. मेरे दादा, मेरी दादी, मेरे अंकल, मेरी आंटी और उनके बच्चे, हम सब एक साथ रहते हैं. Now Wahida is saying, you don't worry at all. Everyone in your family will take care of your father. Within 2-3 days, he will get absolutely well. In my family, I have my mother, father and younger sister only. Now what Wahida is saying कि तुम्हारे father जो हैं 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे because there are so many family members in your family and they all will take care of your father, so he will be absolutely fine. But in my family I have only my mother, father and younger sister. But मेरी family में कौन कौन है?
मेरी मदर है, मेरी फादर है और एक यंगर सिस्टर है. Now there is a difference between the two types of families. Okay, one is what, one is joint family. ठीक है, एक होती है joint family और एक क्या होती है बेटा हमारी न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, सिर्फ मदर, फादर एंड द किड्स आर देयर. ओके, बट इन जॉइंट फैमिली, इफ़ यू टॉक अबाउट द जॉइंट फैमिली, तो जॉइंट फैमिली में क्या होता है, सभी साथ में रहते हैं. बहुत सारे जो फैमिली मेम्बर्स है वो सब साथ में रहते हैं. एज यू कैन सी हियर, इधर देखेंगे आप, यस हियर, वन सेकेंड, दिस इज द जॉइंट फैमिली. ये क्या है बेटा, जॉइंट फैमिली, एंड दिस इज न्यूक्लियर फैमिली. ओके, आई होप यू गॉट इट. नाउ व्हाट वहीदा इज सेइंग कि मेरी फैमिली में तो सिर्फ मेरे मदर फादर ही हैं और जो है मेरी सिस्टर है, और तो कोई है नहीं, कोई दादा दादी है नहीं जो मेरे, अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है, कोई बीमार होता है, इफ़ देर इज़ समवन हु इज़ नॉट फीलिंग वेल, सो देर इज़ नो वन टू टेक केयर. जस्ट लाइक योर फैमिली, यू आर हैविंग सच अ बिग फैमिली, यू आर हैविंग अ जॉइंट फैमिली. आपकी तो जॉइंट फैमिली है, मेरी तो न्यूक्लियर फैमिली. ओके, now I hope that you got it, what is the actual concept of the joint family and nuclear family. Okay, yes. So in this page there is a table also, so you will write your yes, you will write कि वो आपके साथ रहते हैं या नहीं, और उनका नाम लिखेंगे जहाँ पर वो रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल योर ग्रैंडफादर, आपके दादाजी कहाँ रहते हैं, वो अगर आपके साथ रहते हैं तो लिखिए yes. If he is not staying with you, then write down where he is staying, write down the names please. In the same way you will have to fill this table. आपको इस table को fill करना है. Okay, now let's move on to the next page. Okay students, now we will do some recall. हम याद करेंगे जो हमने previous classes में पढ़ा है. In your last class, you have already studied about nuclear family and joint family. In a nuclear family, there is only mother and father, but in a joint family, all the members help in the development of the children. बेटा एक nuclear family में सिर्फ there is a mother and a father and the kids. Only these 4-5 members are in the family. But in the joint family, there are so many members. There are grandfather, grandmother, ताऊजी, ताईजी, and उनके बच्चे, they all make a joint family and they all help in the development of a child. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो भी एक बच्चा उस फैमिली में होता है, जॉइंट फैमिली में, तो सभी उसका ध्यान रखते हैं, सभी उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट दिलाते हैं, उसे घुमाने ले जाते हैं, उसको एंटरटेन करते हैं, दे प्ले विद देम. बट व्हेन यू आर इन अ न्यूक्लियर फैमिली इन विच योर मदर एंड फादर आर गोइंग ऑन जॉब, देन द किड इज़ नॉट गेटिंग ऑल दैट लव दैट ही वुड हैव got when he would have been a part of joint family. Okay, so this is the difference between the nuclear and joint family. Now there are some question, find out an answer. Okay, who lives in your neighborhood, आपके पड़ोस में कौन रहता है, ये आपको लिखना है. Okay, how many of them are nuclear families, और उनमें से कितनी families nuclear families है, जो कि छोटी families हैं, they are not so big, you will write about it. Now how many family members are how many members are there in those families, how do they divide the work among them, and if there are any joint families or nuclear families, उनके family में कितने member है ये लिखेंगे. and then you will write that how they divide their work, अपने काम को कैसे वो बांट के करते हैं. एंड हाउ मैनी जॉइंट फैमिलीज आर देयर इन योर नेबरहुड, और आपके नेबरहुड में कितनी जॉइंट फैमिलीज़ हैं जो एक साथ रहती हैं, जो बिग फैमिलीज़ हैं, ये भी लिखना है बेटा आपको. If someone's family had been a nuclear family, then who would have taken care of her father? Now the question here is that कि अगर सुमन की फैमिली में, अगर सुमन की फैमिली भी अगर जॉइंट फैमिली नहीं होती तो उसके फादर का ध्यान कौन रखता, इस बारे में हमें अब सोचना है. सो यू विल हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन ऑल्सो. इफ समन्स फैमिली वुड हैव बीन अ न्यूक्लियर फैमिली, देन इफ हिज फादर वॉज नॉट फीलिंग वेल, हु वुड हैव टेकन केयर ऑफ हिज फादर. ओके, आई होप यू गॉट इट टिल हियर. ओके, अभी हमने क्या क्या याद किया. वी गॉट टू नो अबाउट द जॉइंट फैमिली, अबाउट द न्यूक्लियर फैमिली, एंड वॉट वहीदा एंड सुमन वर टॉकिंग, वाई सुमन वॉज सो वरीड, एंड वॉट वहीदा वॉज टेलिंग हर. ओके, एंड ऑल दीज क्वेश्चन फाइंड आउट एन आंसर. यू विल फाइंड दीज आउट and write the answers of these questions in your notebook.
Now when you will come on this page number 4, you will see a family tree. Suman prepared a family tree, which I have already given you the assignment, or you will be getting the worksheet soon, in which you will have to prepare a family tree. उस family tree में क्या होता है बेटा, आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स की पिक्चर लगानी है ऑन द डिफरेंट प्लेस, जहाँ पे भी वो प्लेस गिवन है आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्रैंडफादर की, यहाँ पे ग्रैंड मदर की, ऐसे आपको सारी पिक्चर्स अपनी फैमिली की वहाँ पे लगानी है. ओके, सो दिस इज योर वर्कशीट, यू विल बी गेटिंग इट सून. तो सुमन ने अपना फैमिली ट्री प्रिपेयर किया है. देन हर ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम है, फिर ग्रैंडफादर का, देन फादर का, फिर खुद का. ओके, क्योंकि उसके पापा हैं, देन उसके जो हैं दादाजी हैं, और फिर उसके दादाजी के भी पापा हैं. इन द सेम वे देयर इज ग्रेट ग्रैंडमदर, मदर एंड सुमन herself. Okay, with the help of your family members you also prepare your family tree, but both maternal and paternal side. अब क्या होता है बेटा, there are two sides. Okay, maternal. Okay, maternal मतलब वो साइड होती है जो कि हमारी मम्मी से जुड़ी होती है, जो कि हमारे मॉम से जुड़ी होती है, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, मैटरनल कहेंगे. ऑलवेज रिमेंबर दिस. एंड व्हाट इज पैटर्नल? yes, let's see what is paternal. Paternal is related to पापा, it is related to dad. okay, dad से related जो भी चीज़ें होंगी, उससे जो भी रिश्ते होंगे, जो भी relationships होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, paternal. So what you will do with your family members, with the help of your family members, you will prepare this family tree. Okay, don't forget to do this, this is very important. Okay, so let's now move forward, but before that let's read the last line. Wahida returned home and she asked her family, why don't our grandfather and grandmother, uncle and aunt live with us? Why did they shift in the city? Now when Wahida returned to the home, जब वहीदा घर पे आई तो क्या पूछा कि मेरी grandfather grandmother हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं? वाई दे आर नॉट स्टेइंग विथ अस, वो क्यों हमसे दूर रहते हैं? वाई डिड दे शिफ्ट इन द सिटी, वो सिटी में क्यों शिफ्ट हुए हैं? सो फार फ्रॉम आर विलेज, हमारे विलेज से इतने दूर. कांट वी स्टे एंड वर्क टुगेदर विथ आर फैमिली मेम्बर्स इन आर विलेज, क्या हम अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ रहकर काम बांट कर नहीं रह सकते? शी इज़ आस्किंग हर पेरेंट्स. बिकॉज क्या हुआ था, क्योंकि वहीदा ने, क्योंकि सुमन ने उसे क्या बताया था कि उसकी फैमिली तो जॉइंट फैमिली है, ऑल ऑफ देम आर स्टेइंग टुगेदर, बट हियर द कंडीशन इज डिफरेंट, दे आर अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियर फैमिली. नाउ शी इज़ आस्किंग कि क्यों हम लोग सब दूर दूर रहते हैं. Okay, now you got it. If you are also in a nuclear family, you will also think about it. Okay, now on the next page we will read कि क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियर फैमिलीज बनती है. What are the reasons behind the formation of nuclear families? Okay, yeah. इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन और हायर एजुकेशन, देखिए जॉब की सर्च करने के लिए और हायर एजुकेशन अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए फैमिलीज़ आर माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़. फैमिलीज़ क्या होती है बेटा, गांव से शहर की ओर आगे बढ़ रही हैं. क्यों बेटा, अपना जॉब सर्च करने के लिए, बच्चों को आगे हायर एजुकेशन, हायर अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए. बिकॉज देर आर सो लेस अपॉर्चुनिटीज़ इन द विलेजेस, सो द अपॉर्चुनिटीज़ आर इन द सिटीज़, सो दे आर माइग्रेटिंग टू द cities. In cities, there are mostly small houses in which few family members can stay together. और क्या होता है बेटा, सिटी में तो बहुत छोटे छोटे घर होते हैं. ओके, देर आर स्मॉल हाउसेज एंड दे आर वेरी मच एक्सपेंसिव. सो गाँव के जितने बड़े घर नहीं हो सकते, तो इतने सारे मेंबर्स भी एक साथ कैसे रह पाएंगे छोटे से घर में. इन विच फ्यू फैमिली मेम्बर्स कैन स्टे टुगेदर, जिसमें क्या सिर्फ कुछ ही फैमिली मेम्बर्स रह सकते हैं एक साथ, सभी फैमिली मेम्बर्स नहीं रह सकते. बिकॉज द हाउसेज आर सो स्मॉल. ओके, एंड दे आर सो एक्सपेंसिव, सो ऑल ऑफ देम कैन नॉट स्टे टुगेदर. Therefore, the joint family are divided into nuclear family. In this way, the joint families are divided into nuclear families. तभी joint families बेटा nuclear families में divide हो गई. Some other reasons are also there for the divided of joint families. Okay, कुछ और भी reasons है. एक reason तो ये हो गया that they are migrating from the villages to
cities, okay, for in search of occupation and higher education, and the houses are so small so they cannot stay together. ये तो एक कारण हो गया. Now let's see the other reasons. Number of family members. Now in joint family there are so many family members, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स एक साथ रहते हैं जॉइंट फैमिली में. तो हमारे लिए क्या होता है, उस छोटे से घर में एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. ओके, लाइक नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो मैटर करते हैं क्योंकि हमें एक साथ रहना है. नाउ यू कैन सी दैट इन अ सिटी लाइक जयपुर there are so many you can say small houses everywhere. Even some of us are staying in the flats, just like me, I am staying in a flat. तो क्या होता है बेटा, there are required number of rooms only, बहुत कम स्पेस होता है तो हमें उसमें एडजस्ट करके रहना होता है. बट इन गाँव जो विलेजेस होते हैं बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, सब एक साथ मिलकर रह सकते हैं बिकॉज दे आर हैविंग इनफ स्पेस. सबके पास अपना अपना रूम है, सबके पास अपनी अपनी स्पेस है. बट सिटी में ऐसा नहीं होता है और स्पेस बहुत कम होता है. इसीलिए दैट्स वाई द फैमिलीज आर शिफ्टिंग फ्रॉम जॉइंट टू न्यूक्लियर. आई होप यू गॉट इट. द इकोनॉमिक कंडीशन. Now whenever you will ask your parents that पापा विलेज ज़्यादा बेटर है या सिटी, सो योर पेरेंट्स विल ऑलवेज से दैट विलेज बिकॉज वहाँ पे हमारा खर्च जो होता है वो बहुत कम होता है. जब हम सिटी में आते हैं तो हम क्या करते हैं, व्हेन वी लुक एट पीपल दे आर स्पेंडिंग, दे आर गोइंग टू मैकडी, दे आर गोइंग टू पिज़्ज़ा हट, दे आर बाइंग दिस थिंग, आई वॉन्ट दैट टॉय. बट इन विलेजेस ऑल दीज थिंग्स आर नॉट देयर. सो व्हेन यू गेट अट्रैक्टेड टू ऑल दीज थिंग्स, आपको खर्च करने का मन करता है, फिर आपका पैसा धीरे धीरे खर्च हो जाता है. बट इकोनॉमिक कंडीशन जो होती है वो भी बहुत मैटर करती है. इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ जॉइंट फैमिली एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑल्सो स्टेइंग टुगेदर एंड योर फादर और मदर आर नॉट अर्निंग इनफ कि वो उनके मेडिसिन भी ला सकें और भी उन्हें हेल्प कर सके बिकॉज योर ग्रैंड पेरेंट्स आर नॉट अर्निंग, दे आर सिटिंग एट home. So it also becomes a problem beta for staying in a joint family. कैपेसिटी टू स्पेंड भी बहुत हम सोच समझ के करते हैं इन जॉइंट फैमिलीज़ बिकॉज सो मेनी मेम्बर्स आर देयर. ऐसा नहीं है कि आपको चॉकलेट खानी है तो आप आपके लिए ले आए. नो, यू विल हैव टू ब्रिंग इट फॉर ऑल द किड्स ऑफ योर फैमिली. एंड इफ़ यू वांट टू ईट आइसक्रीम और समथिंग एनीथिंग एल्स विच यू वांट टू ब्रिंग, सो आपको क्या करना पड़ेगा, सभी के लिए लाना पड़ेगा. सो योर कैपेसिटी टू स्पेंड विल ऑल्सो इंक्रीज. बट व्हेन यू विल स्टे इन अ न्यूक्लियर फैमिली, आप अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं. जितना आपका खर्च करने का मन होगा आप उतना ही खर्च करेंगे. कंटिन्यूस चेंजेस इन द वेज ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स. और क्या हो रहा है बेटा, कंटिन्यूस चेंजेस इन द वे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स के चेंज को सेलिब्रेट करने के तरीक़ों में भी धीरे धीरे चेंज आ रहा है. और ये ही नहीं, बहुत सारे और भी रीजंस है. देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ रीजंस व्हाई द फैमिलीज आर getting divided from you can say joint families into nuclear families. Okay, so I hope you got it कि joint families nuclear families में कैसे change हो रही है बेटा, ये हमने आज जाना. So this was your chapter understanding relations. Today we will be reading still only here. Okay, and in the next class we will be covering all the important topics which are remaining. And till then what you will do, you will be doing your worksheet or preparing a family tree and you will write out the answers of find out and answer. This is your homework and you will fill that जो कि आपके फर्स्ट वाले पेज पर ये वाली जो आपकी टेबल है इसे भी आपको फिल करना है. ओके, एंड देन दिस family tree also. Okay, this family tree also. So these are your assignments. You will be doing all these assignments and what you will do, यू विल रीड द चैप्टर. ओके, आपको क्या करना है बेटा, चैप्टर को भी अपना रीड करना है. ऐसे नहीं बैठना है कि मैम नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी तक वीडियो नहीं आया है. नो, दिस इज़ नॉट डन. यू विल हैव टू रीड ऑल योर चैप्टर्स सो दैट यू विल बी एबल टू कोऑपरेट विद द स्टडीज़. नहीं तो आप सब कुछ भूल जाएंगे बिकॉज इट्स बीन सो लॉन्ग यू आर नॉट कमिंग टू स्कूल. नाउ आपको क्या करना है, अपने घर को ही स्कूल समझना है और बिल्कुल वैसे ही पढ़ाई करनी है. ओके स्टूडेंट्स, एंड ऑलवेज be motivated, safe at your home. So this was your class for understanding relations जिसमें हमने जाना कि न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिलीज क्या होती हैं. नाउ इफ़ यू आर हैविंग अ जॉइंट फैमिली यू आर सो आई मे से यू आर सो ब्लेस्ड कि आपको इतने सारे लोगों के साथ रहने का मौका मिल रहा है.
And if you are in a nuclear family, you are also blessed that you are getting a proper proportion of amount, space and everything you are getting. Okay students, so you will ask your parents that father, mother, why we are staying in a nuclear family, why we are staying in a joint family, are you happy being a part of joint family, are you happy being a part of nuclear family? So all these questions भी आप अपने parents से करेंगे. Okay बेटा, so this was your class and in the next class we will be discussing the remaining chapter. Thank you so much for attending my this class. I hope that all of you will stay at your home and stay safe. Just keep on doing your assignments and keep on attending these online sessions. Thank you again.